class 9th comes in the school, CBSE gets its own involvement. And the first involvement you have got in the month of September, whenever registrations were done in the school. Clear? At that time you have come to know what is CBSE. करना क्या है? हमारा नाम क्यों भेजा जा रहा है CBSE में? पूछा ना? Registration fees क्यों ली जा रही है? Is it? So that is the first involvement of CBSE with you. For what registration is done? I have come to the class. I have told you on that day. From the class 9, when you do the registration with CBSE, at that time CBSE has come to know how many students are going to appear in the exam for the next year. Is it? So that is the pre-preparation for class 10th board examination, so that class 9 registrations are done in the month of September. Clear to you? First involvement. At that time also I told you, whatever your spellings are there, student's name is spelling, mother name, father name and date of birth. These four things are very crucial in your career. Whatever you write in the registration time, that is finalized. If CBSE gives, sometimes it gives the correction, sometimes not. Minor corrections are allowed in the class 10th LOC whenever it is open in the month of October again. Is it clear to you? So that was the first involvement with CBSE. सबको समझ आया कि CBSE का रोल क्या है? After that, whenever you come to the class 10th, you have a board exam of All India level, that is called AISSCE, All India School Certificate, month, year आपका जो भी है, ठीक है? तो CBSE issues a mark sheet and certificate to you that you have passed the class 10th board examination, and that is valid throughout the India and abroad also. How many of you know CBSE is also having its own school in 27 countries? पता है आपको ये बात? नहीं. आपको लगता है CBSE सिर्फ इंडिया में है ना? नहीं पता है ना बच्चों को? हाँ, बहुत मुश्किल है. CBSE is going to open its new international office in Dubai by the next session, 24-25. CBSE is working. जैसे आप एग्जाम देते हो यहाँ बोर्ड का, at the same time इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम हो रहा होता है. 27 कंट्रीज आर देयर जहाँ CBSE स्कूल्स हैं, और आप जैसे बच्चे रजिस्टर्ड हैं यही करिकुलम पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हो. यू मस्ट नो दैट कि हाउ स्ट्रांग वी आर, कि हमारा सिस्टम, हमारा बोर्ड सिस्टम कितना स्ट्रांग है. ठीक है? इन क्लास 10th you get the certificate for that, you get your mark sheet, and that is your own date of birth, your all the entries are there. एक काम और CBSE करता है, अगर आपने ध्यान दिया हो LOC पे साइन करते वक्त, जो कोई बोर्ड नहीं करता. कितने बच्चों ने ध्यान दिया है, कितने पेरेंट्स ने ध्यान दिया मुझे नहीं पता, but you must notice that in your record, LOC means that is list of 108. Your mother name comes first. किसी ने ध्यान दिया था इस बात पे? Yes. Yes. जबकि ओवरले हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है, पापा का नाम पहले पूछते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, ऐसा पूछते हैं ना? बट CBSE that gives honor to our women empowerment, motherhood, is it? मदर नेम पहले आता है. Anyway, that is the first involvement with CBSE. After that, अभी you have just cleared 3 exams ना? आपके 3 एग्जाम हो गए, PA1, half yearly and PA2. तो what difference you notice with the class 6, 7, 8 and class 9? आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया अब तक? Anybody? Raise your hand, just interact with me. यहाँ पर डिफरेंस कहाँ है? क्लास 6, 7, 8 में क्या था? क्लास 9 में आके क्या चेंज हुआ? Thinking, हाँ, प्लीज. the critical thinking and the level of the papers. गुड. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर. एनी मोर? रेज योर हैंड्स. इंटरेक्शन, ये वन वे नहीं है भाई, वन वे वार्तालाप नहीं है. कन्वर्सेशन समझते हैं, संवाद. संवाद क्या होता है? जब दोनों लोग बोलते हैं, पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे, वो संवाद होता है. और इसको डायलॉग कहते हैं. मोनोलॉग क्या है? जिसमें सिर्फ हम ही बोलेंगे. तो मोनोलॉग नहीं चल रहा है, डायलॉग चल रहा है. बताओ, कुछ नोटिस नहीं किया तुमने? तुम्हारी दुनिया वैसे ही है जैसे क्लास 6 या 8 में थी, कुछ बदली है? तो क्या बदला है वही तो पूछ रहे हैं. फिर हम डिस्कशन करना शुरू करें उसी पर. नहीं, कुछ नहीं बदला है. टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं बदला है, टाइपोलॉजी ऑफ पेपर नहीं बदली है क्या? क्लास 6 या 8 में कितने सारे क्वेश्चंस थे, MCQs आते थे. पैटर्न चेंज हुआ है. दैट आई वांट टू लिसन. पैटर्न चेंज हुआ है. एनीथिंग मोर? पेपर पैटर्न चेंज हुआ है.
एनी मोर चेंज यू फील? नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, अब नहीं आते। मैच द फॉलोइंग आते थे, अब नहीं आते, है ना। वन वर्ड आंसर आते थे, अब नहीं आते। So that is the main change in the typology of question paper framing, is it? So for what? One boy has said critical thinking. Now the questions are just like that. We should think over it and answer properly. Now direct questions are not there. Direct question means write the two properties of a metal. अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, is it? क्वेश्चन आता है you have to identify the metal also and just पहले मैप में क्या आता था, सोशल में बताओ दिल्ली कहाँ पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसका आंसर दिल्ली है, फिर दिल्ली लोकेट करना पड़ेगा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि 1940 व्हाट वाज द इंडियन कैपिटल, तो तुम याद करो यार 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले कैपिटल कौन सी थी, तो तुम्हें याद आएगा 1911 तक तो कलकत्ता था, 1911 में हम दिल्ली शिफ्ट हुए, है ना। तो सोचना पड़ता है। अगर पूछा जाए 1910 में इंडियन कैपिटल क्या थी, तो आप कलकत्ता शो करोगे। तो फर्स्ट यू थिंक अबाउट द आंसर, आफ्टर दैट यू थिंक अबाउट द लोकेशन ऑन मैप। यू गेटिंग मी? द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी क्रिटिकल, दे आर नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो दैट इज द मेन डिफरेंस। फिर अभी तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे टीचर से लड़ते हैं, वो क्लास 8 तक तो बच्चा बहुत होशियार था, उससे तो 90 जो नंबर आते थे, अब 60 में आ रहे हैं। तो पहले 90s में क्यों आते थे और अब 60s में क्यों आ रहे हैं? एनीबॉडी इज थिंकिंग ऑफ दैट? कोई इस बात को सोच रहा है? नो। पेरेंट्स आर जस्ट गो विद मार्क्स। पेरेंट्स को सिर्फ मार्क्स से मतलब होता है। उनको लगता है इफ यू आर गेटिंग द मार्क्स यू आर गुड स्टूडेंट, इफ यू आर नॉट गेटिंग द मार्क्स यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट। दैट इज द पैरामीटर फॉर द पेरेंट्स ओनली, नॉट फॉर द टीचर्स, नॉट फॉर द प्रिंसिपल। बीइंग अ प्रिंसिपल आई नो व्हाटएवर द इवन एंड ऑड आर देयर, आपके नंबर कम आने से आप खराब नहीं हो जाते। ये झटके 9th वाला आपको स्टूडेंट लाइफ में 3 बार लगते हैं। नर्सरी क्लास 1-2 तक हमें समझ ही नहीं होती, हम इतने बड़े ही नहीं होते कि हम समझ पाएँ कि पेपर क्या है, मार्क्स क्या होते हैं, कैरियर क्या है, ऐसा कुछ हमारे मन में आता नहीं क्लास 2 तक। तो क्लास 3 तो निकल जाता है आराम से। बट मेरे को कम टू द क्लास 6 आपको लगता है पेपर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले 2 लाइन में क्वेश्चन आ जाता था आंसर, अब 6 लाइन लिखनी पड़ रही है। एक तो क्लास 6 में आपको लगता है कि सिलेबस हैज बिकम सम ब्रॉड। दूसरा क्लास 9 में आके आपको लगता है, बात करेंगे उस पर। और फिर क्लास 11 में आके फिर लगेगा आपको द सेम प्रॉब्लम अगेन यू विल फील व्हेनेवर यू विल गेट टू क्लास 11। तो व्हाट इज सो, व्हाट इज द डिफरेंस, ये इतना सारा परेशानियां क्यों है? तो दैट इज द ओनली डिफरेंस इज दैट इन द क्लास 8 यू थिंक ओवर इट कि व्हाटएवर द क्वेश्चंस आर देयर इन योर इनसाइड द बुक, these are the only question found on the earth। आपको लगता था क्लास 8 में कि जितने क्वेश्चन मेरी किताब में दिए हुए हैं धरती पे इतने ही क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फिर क्लास 9 में आके पता लगता है नहीं, दुनिया तो और भी है, क्वेश्चंस तो और भी हैं। एक बुक चलती है, उसके बाद आर डी शर्मा की बुक भी चलती है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद आर एस अग्रवाल की बुक भी है मैथ्स की, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक पीके गर्ग की बुक भी आती है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब जब ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बुक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण बहुत जल्दी समझना पड़ता है। दैट इज द रीजन, व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द बुक कंटेंट। क्लास 8 तक हमें लगता था कि जो हमारा बुक कंटेंट है सिर्फ वही सिलेबस होता है। क्लास 9 आके पता लगता है नहीं, बुक कंटेंट अलग चीज है और सिलेबस अलग होता है। कैसे समझ पाओगे इस बात को जो मैंने बोली अभी? कठिन बात है तुम्हारी उम्र में समझने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि अगर सिलेबस में लिखा हो कि मैथमेटिक्स सिलेबस दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, ये सिलेबस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट। और उसमें अगर क्वेश्चन हम पूछते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 12 तो बहुत ईजी लगता है, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है 11 मल्टीप्लाई 12। और उसी क्वेश्चन में पूछते हैं 79 मल्टीप्लाई बाई 94 तो क्वेश्चन टफ लगने लगता है। सिलेबस तो वही है, सिलेबस में क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स तो 11 इंटू 12 भी है और 2 डिजिट्स 79 इंटू 94 भी है। यू आर गेटिंग मी? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कंटेंट,
syllabus described and the questions whatever are coming in the examination paper. Try to understand it as early as possible. क्लास 9 में आने के बाद हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि बुक कंटेंट और सिलेबस एक चीज नहीं है. Is it? And that is the only reason why the class 9th is considered as the most difficult class in CBSE system. इकलौता रीजन है ये, जहाँ बच्चे बुक कंटेंट और सिलेबस में डिफरेंस नहीं समझते, उसी वजह से प्रेशराइज होते हैं, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज नहीं बना पाते, उसके अनुसार चल नहीं पाते और मार्क्स नहीं अच्छे स्कोर कर पाते, फिर डिप्रेस हो जाते हैं. जब तक मार्क्स आ रहे होते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है. जैसे ही मार्क्स कम होने शुरू होते हैं, फिर सब लोग कहना शुरू कर देते हैं पहले तुम बहुत पढ़ते थे. रीजंस क्या है वो नहीं पता है. तो पेरेंट्स क्या रीजन ढूंढते हैं? तुम मोबाइल बहुत चलाते हो, तुम टीवी बहुत देखते हो, तुम खेलने बहुत जाते हो, घर से बाहर घूमते रहते हो. These are the various reasons. Whatever the parents answer to you, but actual reasons we are discussing here. Whatever the actual reasons are there, we are going to discuss here with you. You are not scoring marks as you are scoring in class 6, 7, 8. That is considered as one reason कि आप स्टडी नहीं कर रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो whatever the reasons, अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन पे आएंगे. अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स में आती हैं क्लास 9 में. पेपर टाइपोलॉजी इज डिफरेंट. क्लियर हो गया ये? पेपर का जो पैटर्न है वो सेम नहीं है जैसा क्लास 6, 7, 8 में होता था. अब कुछ स्ट्रेंथन हो गया है, कुछ हार्ड हो गया है. वन वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स आर नॉट देयर इन द क्वेश्चन पेपर. ये जो हमारा स्कोरिंग पार्ट होता था, जहाँ पर हम मैक्सिमम स्कोर कर लेते थे, वो क्वेश्चंस अब एग्जामिनेशन पेपर का हिस्सा नहीं है. Class 9 brings a huge change in the study curriculum of a student. The addition of vast libraries in the all subject demands a better studying strategy. What does it mean? Let the example of class 9 science. Class 8 science book hardly it consists 250 pages. Class 8 की साइंस बुक में कितने पेज थे मैक्सिमम? शायद 250 हो, शायद आई होप सो, हो सकता है इससे कम ही हो, 230 के आसपास ही. 200 पेजेस approx. What happens in class 9? Class 9th you come to know कि science is divided in 3 parts. Class 8 में हमें पता ही नहीं होता है कि साइंस के अंदर भी साइंस होती है. जब क्लास 9th में हम आते हैं तो हमें पता चलता है साइंस के अंदर भी साइंस होती है. वो क्या है? एक पेपर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन. ठीक है, अभी क्लास 9 में सिर्फ इतना पता चला है. क्लास 11th में क्या पता चलेगा? कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है 100 नंबर का, बायोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है 100 नंबर का. इन क्लास 9, 10 they are the part of science paper. In class 11th just their own subjects. Is it? So that is a huge change in the syllabus, in the paper content, in the syllabus. जो बुक कंटेंट होता है उसमें आता है. अब देखो हमारे पास प्रेस्क्राइब्ड बुक्स जो है, लखबीर सिंह की बुक एक आती है क्लास 9. इज इट? फिजिक्स की बुक है अलग, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से मोर देन 300-350 पेजेस है एक बुक फिजिक्स की, है ना? ऐसे केमिस्ट्री का, ऐसे ही बायो का. फिर अगर इतना पढ़ के हम अपने आप को होशियार समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है नहीं एक बुक और आती है एनसीईआरटी की, है ना? एंड दैट इज द मेन बुक. तो 3 बुक पढ़ी, साइंस कंप्लीट नहीं हो पाई, फिर कहा ये किताब और पढ़नी है. इतना पढ़ के हम खुश होने वाले थे, ये 4 किताबें पढ़ के हम खुश होने वाले थे कि चलो साइंस कंप्लीट हो गई है. फिर पता चलता नहीं प्रैक्टिकल भी होता है, लैब में भी जाना है, 15 प्रैक्टिकल्स भी लिखने हैं, उनके भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन पेपर में. इज इट? नाउ कंपेयर द क्लास 8 200 पेजेस बुक, हियर more than 300 pages multiplied by 3 along with NCERT plus practical questions. So now the syllabus is how much long? कितना गुना हो गया ये? लगभग 4 मल्टीप्लाई हो गया ना, 4 गुना तो हो गया ना. इज इट? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम क्लास 8 में भी घर पे जब पढ़ने बैठते थे साइंस, तो 30-40 मिनट में हमारा कंटेंट हो जाता था. जो स्कूल में पढ़ाया गया और जो क्वेश्चंस मिले हमें, जस्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद इन 30-40 मिनट्स, और हमने कॉपी फेंकी, साइंस कंप्लीट हो गई, है ना? अब हो जा रहा है क्या 40 मिनट में कंप्लीट? और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी भी 40 मिनट ही देना चाहते हैं. तो सिंपल सी बात है, एज द कोर्स कंटेंट इंक्रीजेज
द नंबर ऑफ आवर्स फॉर द स्टडीज मस्ट इंक्रीज। सिंपल थॉट कि अगर हम पहले 40 मिनट पढ़ते थे तो उसका 4 गुना पढ़ना पड़ेगा भाई, 160 मिनट पढ़ने पड़ेंगे, एंड दैट बिकम्स कितना, 2.5 घंटा लगभग। वो हम दे नहीं रहे। फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे हमें समझ में आएगा, कैसे हम काम पूरा कर पाएंगे? प्रॉब्लम समझ आई, सॉल्यूशन समझ आया? जस्ट ओनली इंक्रीज योर टाइम, वट एवर द कंफर्टेबल टाइम इन द क्लास 8, उससे काम नहीं चलने वाला है क्लास 9 में, ठीक है? और थोड़ा सा तुम्हें एक झलक बता दूं कि क्लास 11th में जब जाओगे वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की बुक आएगी, एक फिजिक्स की, ठीक है? और वो 1300 पेज से ऊपर की, एक सिंगल बुक। उसका हेल्प बुक भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। 70 मार्क्स का वहाँ रिटन पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। आपके वहाँ क्या होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स इंटरनल होता है। क्लियर है? तो वहाँ भी क्या 2.5 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा 11th में? समझा रहा हूँ अभी, ठीक है? नंबर ऑफ आवर्स शुड बी इंक्रीज्ड। प्रॉब्लम क्लियर हुई? Although class 9 is easy from the other higher secondary classes because this is the beginning of higher studies. Class 9 जो है, जैसे 2 की टेबल पढ़ते हो ना, उस 2 की टेबल पढ़ने से फिर पीछे छूट जाता है क्या कभी? 2 की टेबल पढ़ते हैं ना हम लोग, घर से किसी कहीं सिखाई जाती है क्लास 1 2 में। तो जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो क्या वो 2 की टेबल कह देते हैं अच्छा आप सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दो? ऐसा हो पाता है क्या? जब तक पढ़ेंगे वो 2 की टेबल काम आती है ना। ऐसे ही क्लास 9 इज द बिगिनिंग क्लास, इट इज द फर्स्ट स्टेप। जब सफलता की सीढ़ियां चढ़नी है, यहाँ से करियर बनाना है, जॉब की बात करनी है, प्रोफाइल की बात करनी है, अपना करियर के बारे में सोचना है, जीवन में हम क्या बनेंगे, 15 साल बाद हम कहाँ होंगे, ये क्वेश्चंस क्लास 9 में आके अराइज होते हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, सिलेबस के साथ, आपके करियर के साथ, आपकी पूरी पर्सनालिटी के साथ। इज इट? हम लोग महात्मा बुद्ध की धरती पे हैं, कुशीनगर में, है ना? कुशीनगर अंतिम शहर है, अंतिम रात्रि बिताई थी महात्मा बुद्ध ने यहाँ कुशीनगर में। पता है सब बच्चों को? महात्मा बुद्ध अपने शिक्षाओं में क्या कहते हैं? उससे बेहतर शिक्षक नहीं है कोई। 4 शहर हैं जो महात्मा बुद्ध जी के जीवन में बहुत योगदान रखते हैं। लुम्बिनी नेपाल में चला गया, जहाँ उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने सारा, राजा थे वो, सब छोड़ दिया राजपाट सारा, है ना? ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। सारनाथ से प्रवचन शुरू किया उन्होंने, वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ, वहाँ पहला प्रवचन दिया था। धम्मे की स्तूप है, अभी मैं जल्दी विजिट करके आया उसको। उसके बाद राजगीर और गया, ये 2 शहर हैं, बोध गया राजगीर मिले हुए शहर हैं आसपास। वहाँ मैक्सिमम जीवन उनका बीता है, जो आगे का बौद्धिज्म वाला जीवन है वो वहीं उनका काम सारा है। वहाँ भी बहुत बड़े स्तूप हैं, राजगीर में मैंने विजिट किया था। और अंतिम शहर कुशीनगर आता है। इन 4 शहरों का महात्मा बुद्ध के जीवन में एक अलग योगदान है ना? 3 विजिट कर लिए मैंने, एक बाकी है, लुम्बिनी बाकी है, होप इस विंटर वेकेशन में देख लूँगा। एनीवे, कम टू द पॉइंट। महात्मा बुद्ध कहते हैं द पर्सन व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये 1 करोड़ का थॉट है, ये लाइफ वैल्यू है ये थॉट। आज जितने लोग बैठे हो, किसी को अगर समझ आ गया आज तो आपका जीवन बदलने वाला है। रिपीट कर रहा हूं, द पर्सन व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, वो सब बन सकते हैं। बस उसके अकॉर्डिंगली हमें मेहनत करनी होगी और काम करना होगा। ठीक है? क्लियर है? थॉट क्लियर है? आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो। क्लास 9 is easy for the higher secondary classes but much tougher than any intermediate class. क्लास 9, 10, 11, 12 की बात करें तो क्लास 9 सीबीएसई सिस्टम की वजह से टफ क्लास मानी जाती है, बट कंटेंट की वजह से नहीं। ये कंटेंट कितना है? 2 का टेबल है। तो वट एवर यू स्टडी इन योर बुक्स, दैट इज सिंपली ए टीजर, आइदर ए ट्रेलर और तो मेन सिलेबस। मूवी आती है ना 3 घंटे की, उसका 1 मिनट का 3 मिनट का टीजर ट्रेलर रिलीज कर देना। आप क्लास 9 सिलेबस को उतना ही मानो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। वेरी गुड, ठीक है। अभी तुम्हें क्लास 11 में जाके पता चलेगा कि 287 नहीं होता, फिर तुम क्या करोगे? तुम घबरा जाओगे, फिर तुम कि गलत पढ़ के आ गया क्या? नहीं,
वहाँ तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की शेल ही नहीं होती। ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट दिखाते हैं हम, ये ऑर्बिट ऐसी होती ही नहीं है। फिर घबरा जाओगे तुम, सोचो गलत पढ़ लिया, ये तो आएगा मन में। ऐसा नहीं है, गलत नहीं पढ़ लिया, अब उससे आगे की बात पढ़ ली। जैसे क्लास 8 तक पढ़ाते थे तुम्हें कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, ऐसे पढ़ाते थे, है ना? इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्लास 9 में आगे क्या बताते हैं? डिवाइड कैन बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है ना? अभी 3 ही पार्ट बताया ना? क्लास 11 में जाओगे तो पता चलेगा नहीं, अभी बताया गया तुम्हें कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। वहाँ जाके उल्टा पढ़ा देंगे तुम्हें, कहेंगे नहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। और 3 ही पार्टिकल नहीं होते, मोर देन 17 पार्टिकल्स आर देयर इनसाइड द। फिर दिमाग घूम जाता है। तो दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि जो क्लास 9 का सिलेबस है दैट इज जस्ट टीजर और ट्रेलर इन द मूवी। एक्चुअल फिल्म क्लास 11 से शुरू होने वाली है। क्लास 9th एंड 10th जस्ट एक झलक दिखलाता कार्यक्रम होता है कि सारा सिलेबस को हम थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ा दें, सो दैट स्टूडेंट्स कैन क्रिएट देयर ओन इंटरेस्ट इन विच एरिया दे वांट टू गो। उनको मैथ्स अच्छी लगती है तो मैथ्स में चले जाएं, फिजिक्स अच्छी लगती है तो फिजिक्स में चले जाएं, केमिस्ट्री अच्छी लगती है केमिस्ट्री में चले जाएं, बायो अच्छा लगता है बायो में चले जाएं। तो क्लास 9 10 का सिलेबस जो है वो इस तरह से डिजाइंड है कि हम सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ा दें बच्चों को, ठीक है? एक्चुअल स्टडीज दे कम फ्रॉम द क्लास 11, तो उसमें परेशान नहीं होना है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने, जैसे अभी क्लास 8 में हम एटम पढ़ते थे ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्लास 9 में पढ़ा 3 पार्टिकल्स हैं, तो क्लास 11 में और सारे पार्टिकल्स आने वाले, ठीक है? कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि क्लास 9 अपने आप में सिस्टम की वजह से कठिन हो सकती है, बट कंटेंट की वजह से इट इज द इजीएस्ट क्लास इन 9, 10, 11 एंड 12। ऐसा इसलिए बता रहे हैं, जैसे भी केमिस्ट्री की फिजिक्स की बात की ना हम लोगों ने, फिजिक्स जब आगे जाएगी बीएससी में तो फिजिक्स से भी 3 पेपर हो जाएंगे। केमिस्ट्री अभी एक पार्ट है क्लास 9, 10 में, 11, 12 में एक सब्जेक्ट होगा, और जब बीएससी लेवल पे जाओगे ग्रेजुएशन लेवल पे तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो जाएंगे वो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट कम्स विद कार्बन, कार्बन का जितना भी कंटेंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सिलेबस का एक्सपेंशन है,